بنا سکوں ادھر آبادی میں باہر ادھر نہیں اس کو چھوڑا ٹھیک ہے نا ویڈیو بناواں گا نال پہلے ثاقب کدھر گیا ادھر آ گیا میری چاری پہ فلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہم یا رسول پاک نبی پاک یا اللہ کل و رحم کرم فضل کر میرے عزیزوں کو رحم کرم فضل کر لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کل کو کامیاب کر ہمارے عزیزوں کو کامیاب کر کچہری میں بولنے کی طاقت اور ہمت فتح دے کامیابی دے لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول نام لمبا ہے پہاڑی شکیل احمد پہاڑی میں کسی کا لمبا رکھا ہے نکا لکھو شکیل احمد اللہ شکر الحمدللہ 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 اللہ کا ادا نہیں ہو سکتا شکر الحمدللہ الحمدللہ تے طاقت دیتی ہمت دیتی فتح دیتی کامیابی دی کو لگائے گا بولتا بھی رہا ہمارے بھائی کا چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں دل نہ کو بتا مان
میچ کھیل ہے آؤ کپڑے سیجیے کچھ آپ لیٹ آئے ہوئے کرا آئی جائیے دیکھا ہاں یار ہمارا بیٹھا ہونے کا مقصد ہے ہم سیدھا اسی مقصد پہ آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. کچھ نہیں ہے، اتار چڑھاؤ سب ہوتے رہتے ہیں، گھر میں فیملی میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پر اس معاملے کا کوئی نہ کوئی سولوشن، کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. عرصہ دراز سے ہمارے گاؤں کے اندر اور جموں کشمیر کے اندر باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی تھی کہ باپ گیا دادا گیا باپ آیا، باپ گیا بیٹا آیا، وہ تھا نمبرداری سسٹم. جبکہ باقی ہندوستان میں یہ نہیں تھا، وہاں 4 سال کا پیریڈ تھا اور 4 سال کے بعد ہر اسٹیٹ میں الیکشن ہوتے ہیں نمبردار کے. چلو جہاں جیسا کہ ویسے سرکاریں چلتی رہی، کام چلتا رہا. اب ڈیجیٹل دور آیا، بدل رہی ہے ہر چیز. جموں کشمیر کے اندر بھی نظام چینج ہو رہا ہے. اس میں اگر سرکار نے کوئی آرڈر نکالا کہ ہر پنچایت میں، ہر گاؤں میں سے ایک نمبردار جو ہے وہ پڑھا لکھا اور اتنی عمر سے اتنی 25 سال سے 40 سال کے درمیان کا بنانا ہے. باقی گاؤں نے کیا 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 نہیں کیا، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا. وہ ان کی اپنی قابلیت ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی ضرورت ہے. ہمارے گاؤں کے اندر بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ یہ کسی کام کا ہے. نعوذ باللہ، میرا ہر چھوٹا بچہ سے لے کے بڑے بزرگ تک ہر آدمی قیمتی ہے اور ہر آدمی کی انمول قیمت ہے. پر حدیث پاک بھی ہے، شرعی مسئلہ بھی ہے اور دینی طریقہ بھی ہے اور دنیاوی طریقہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام اگر کرنا ہے، 10 آدمی چل رہے ہو اس میں ایک امیر چن لو تاکہ آپ کا کنبہ، آپ کا قافلہ جو ہے وہ مضبوط رہے، وہ سسٹم رہے. اسی طرح گاؤں کے اندر اگر نمبردار چننے کی باری ہماری بھی آئی ہے تو اچھی بات ہے، مبارک ہے. سرپنچ صاحب نے بھی کافی کوشش کی، بار بار ایک نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس، ایک میٹنگ، دوسری میٹنگ، تیسری میٹنگیں ہوتی رہی. ایک میٹنگ میں ہم بھی شامل ہوئے جس میں کچھ نام چوز کیے گئے کہ کون کون نمبردار بننا چاہتے ہیں. یہ آزادی کا ایک مزہ تھا. تو اس میٹنگ میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ شاید نہیں آئے ہوئے تھے، ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے تو اچھی بات ہے. اس میٹنگ میں 6 نام آگے سامنے. 6 ناموں کی لسٹ تیار ہوگی کہ ٹھیک ہے یہ 6 لوگ نمبرداری کے الیکشن کے لیے خواہش رکھتے ہیں. اب اس کے بعد جب یہ 6 نام دے دیے گئے، جس میں 6 ناموں میں غلام نبی جٹ، میں آپ سب کو عیاں کر دوں، اس کے بعد غلام رسول، وقار احمد نمبردار جی کا لڑکا، اس کے بعد راجہ راہیب میرا فرزند، افراز احمد، فیض احمد ماموں کا لڑکا، اور اس کے بعد عظیم رکھیالہ سے. ٹھیک ہے، یہ لوگ کچھ نام آ گئے. امداد علی، سوری امداد علی بھی اس میں سرے فہرست تھا. جب یہ ابرار تو جب یہ نام آ گئے تو ہم نے لسٹ بنائی. لسٹ بنانے کے بعد لوگوں میں بیٹھ کے یہ فائنل کیا کہ اب ہم آگے والا جو سسٹم ہے وہ کریں. تو دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ لونڈی محلہ سے یا جہاں مطلب سنا جو ہم نے کہ لسانس نائب سرپنچ کے تحصیلدار کے پاس پہنچے ہوئے ہیں نمبرداری کے فارم بھرنے کے. تو میں نے اچھا سمجھا کہ بہتر ہے جا کے بات کی جائے. جب بات کی گئی نائب تحصیلدار صاحب سے تو انہوں نے کہا جی اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں، آپ وقت نکل چکا، اب یہ تحصیلدار کا معاملہ ہے. میں آپ سب کو عیاں کرنا چاہتا ہوں. تو جب ہم تحصیلدار صاحب کے پاس گئے، میرے ساتھ اور 2 کینڈیڈیٹ بھی تھے، تحصیلدار صاحب سے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی لاعلمی ہے، مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہے. ابھی پہلے ٹرمینیٹ ہی نہیں ہوئے، پہلے کو ہٹایا نہیں گیا تو ڈے کہاں سے بنی. تو ہم نے ہمیشہ قانونی دروازہ ہی کھٹکھٹایا. تو ہم نے اپلیکیشن لکھ کے رکھی تھی جس میں وہ 6 نام انٹر کر کے رکھے. ہم نے اپلیکیشن یہ لکھ کے رکھی کہ یہ 6 نام جب تک کوئی ڈیسیجن لے کر ایک کو چن کے نہیں دیں گے تب تک کسی ایک کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. کیا اس میں کوئی غلطی کی تھی ہم نے کہ یہ 6 کینڈیڈیٹ چاہے قرآن اندازی ہو، جس طرح بھی ہو، سیٹ ہو جائے، افرادی طور پہ ہو جائیں، ایک آدمی کا نام دیں گے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، تب تک ایکسیپٹ کسی کو نہ کیا جائے. بہرحال وہ نائب صاحب کو مارک کیا، نائب صاحب وہاں ملے، بات ہو گئی. 2 دن نکلے، ایک نوٹس آتا ہے کہ کل میٹنگ رکھی گیا سرپنچ صاحب کی طرف سے، موسم خراب تھا نہیں ہوئی، پوسٹ مین کی گئی. پھر دوسرا رکھا گیا.
چلو اس پہ آج اکٹھے ہو گئے، لیکن آج رات کا ایک عجوبہ نظر آیا جو کسی گاؤں، کسی پنچایت، کسی محلے میں یہ نہیں ہے، تو نہ ہونا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں یہ ہمارا جسے ہم کہتے ہیں بھروسہ توڑنا، اعتماد توڑنا، ہماری عزت کا نیلام کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، گاؤں کا چھوٹا بچہ بھی اگر سامنے آئے گا وہ ہماری عزت ہے، کیونکہ گاؤں دندک کا ہے۔ پر رات کو ایک لسٹ جب میں نے پڑھی، اس میں سب گاؤں کے نام آئے ہوئے تھے، نام لکھے ہوئے تھے، اس میں ابرار کا نام بھی تھا جو نمبردار صاحب کا صاحبزادہ ہے، کہ وہ نمبردار کے لیے نام بھیج دیا گیا ہے۔ تو پھر کافی لوگوں کے فون بھی آئے، میں نے غلام رسول بھائی سے بھی بات کی اور لوگوں سے بات کی، میں یار یہ کیا ہے، پھر کس لیے میٹنگیں کر رہے ہو، کس لیے نوٹس لکھ رہے ہو، کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر اس میں پہلے صفائی عمل پر اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ سرپنچ دندک ہے۔ اگر پہلے نمبر پہ اگر کسی نوٹس کی مداخلت خلاف ورزی ہو رہی ہے تو سرپنچ کے نوٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بے شک ٹھیک ہے نا؟ سب بات ہے، سچ بات ہے۔ اس پر سرپنچ کو بھی لوگوں کے ساتھ رہ کے چلنا ہے، عوام سے ہی سب کچھ ہے، عوام ہے تو سب کچھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نام دے دیا گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکا اچھا ہے، ہم نہیں کہتے وہ، پر طریقہ کار غلط، طریقہ کار غلط۔ وہی نام آج دیا جاتا نا، ہم سب اس بات سے بیٹھتے کتنے اچھے لگتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے، کسی کو پتہ بھی چلتا، اگر اس کا تھوڑا سا رات کو کوئی کنٹراورسی ایک دوسرے سے ہوئی تو پھر نمبردار جی سے بھی بات کی تو انہوں نے واضح کیا، قسم بھی کھائی کہ میں نے نام یہ نہیں دیا۔ اب اتنا بڑا وفادار نمبردار جی کا کون ہے جس نے ہم کا نام ڈیجیٹلی نمبردار تیار ہو گیا بندہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نمبردار جی کوئی بات نہیں، آپ صبح آئیں، لوگ آ رہے ہیں، ہم بیٹھیں گے، بیٹھ کے اس پر ڈسکس کریں گے۔ میں بھی میرے ذہن میں جو آیا وہ یہ آیا کہ ذمہ داری اگر سرپنچ کی تھی گرام سبھا کرنے کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، نمبردار چننے کی، تو نمبردار کا نام دینے کی ذمہ داری اسی پہ تھی نا، تبھی وہ نوٹس دے رہے تھے۔ اور ایک طرف سے نوٹس، ایک طرف سے نام، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میری نظر سیدھی گئی سرپنچ صاحب۔ میں نے نمبردار جی کو صاف کہہ دیا کہ نمبردار جی اگر ایڈمنسٹریشن کوئی نام مانگ رہی ہے وہ کسی بھی دوسرے بندے سے نہیں نام لے گی جب تک گاؤں کا کوئی ذمہ دار نام نہیں دے گا، اس میں آپ بھی ہو، سرپنچ بھی، آپ دونوں کا ہی مسئلہ ہے، تیسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ پر انہوں نے لا علمی اختیار کی، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے، بلائیں گے وہ بھی آئیں گے، ان کی بات کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ کہانی ہے ساری، اس مسئلے کا بہترین طریقے سے بیٹھ کے اگر ہم حل کریں تو اچھی بات ہے۔ جو بھی بنے گا اس کے ساتھ ذمہ آئے گی، بڑی ذمہ آئے گی، گاؤں کی ذمہ آئے گی، پر ایک سسٹم سے آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی سے اتفاق کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔ اس کے بعد میں عبدالعزیز سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی اپنے کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سرپنچ صاحب، حافظ میرے قاضی محترم حکمی صاحب، مولانا فیض صاحب اور ہمارے گاؤں کے معزز حضرات، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس رب قدوس نے ہم سب کو آج جمع فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، ہم سب ایک مقصد پر جمع ہوئے ہیں جو ہم سب اس سے واضح واقف ہیں کہ ہمارے گاؤں کے نمبردار صاحب جو سابقہ نمبردار صاحب ہیں، انہوں نے مجھے سب سے پہلے فون کیا کہ ہم نمبردار جتنے بھی تھے جموں کشمیر کے اندر ان سب کو معطل کیا گیا، یعنی اپنے جو ہمارا اسٹیج تھا ہمیں اس سے وقفات کیا گیا ہے۔ مجھے فون کیا کہ آپ کا نام میں دے رہا ہوں۔ میں نے کہا جی گاؤں میں باقی لوگ بھی بستے ہیں، بہت نوجوان ہیں ہمارے پاس، پڑھے لکھے اچھے سے، آپ کیا کریں سرپنچ صاحب کو بلائیں اور باقی 9 ممبر ہیں ہمارے گاؤں کے، سب کو اکٹھا کریں اور ان سے مشورہ لیں، پھر طے کریں کون آ رہا ہے آگے، جس کو آپ آگے کریں ہم ساتھ ہیں آپ کے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ آپ کا اگر لڑکا آ رہا ہے تو ہم سب ساتھ ہیں، سب سے پہلا ووٹ میرا ہوگا۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہمارے گھر سے کوئی نہیں بن رہا، نہ میں بننے دوں بچے کو۔ بہرحال بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تم بات وہ کرو، سچی بات کرو، اگر چاہے تمہارے قریبی بھائی کا معاملہ ہی کیوں نہ۔ اب ہمیں اس سے لا علمی ہے کہ یہ نام کیسے گیا، وہ ظاہر آئے گا انشاءاللہ، کون دے گیا، کس نے دیا، کیسا ہوا، لیکن اگر رمضان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیا تو ہم ان پہ اعتماد کیسے کریں جب تک ہمارے پاس سامنے سچ نہیں آئے گا۔ لوگوں کو بیوقوف بنایا، اگر 2-3 بار بلا کے لوگوں کو خجل کیا، یہاں پہ لوگوں کے
ख्यालात को ठेस पहुँची है, क्योंकि लोग सुनना जानते हैं, आवाम सब कुछ कर सकती है। तो अल्लाह ताला कुरान फरमाता है कि सच बात हो, इसलिए अगर उन्होंने झूठ बोला यहाँ उस दिन, वो क्या कहेंगे लास्ट में यहाँ 50-60 आदमी था कि मेरे घर से कोई नहीं बनता। अगर उन्होंने ऐसा किया है, अपना नाम दिया लड़के का, तो इसलिए नवाज़ साहब ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। अगर ऐसा किया वैसा नहीं किया तो आज भी हमारे पास मौका है, सरपंच साहब वाज़े बयान करेंगे कि हमने क्या करना है, कौन बने, अच्छा आदमी होना चाहिए, गांव की जिम्मेदारी चलानी है, कोई मामूली काम नहीं है ये नवदारी का। बहुत बड़े मिसाइल बनते हैं गांव में, तरह तरह के मामला आते हैं, लिहाजा हम सबको एक अच्छा रहनुमा चुनना है जो गांव को लेकर चले। ऐसा ना हो कि ऐसा चुने को जो गांव को डुबोए। और इमरान भाई भी अच्छे हैं, हमें उनसे कोई इख्लाफ नहीं है। इख्लाफ इस बात पर है कि लोगों को 2-3 बार बुलाकर लोगों के जो ख्यालात थे उनको बयान नहीं किया गया, अपने ही राय से उन्होंने जो नाम दिया वो ऐसे ही आ गया, जिस सब की आइया हर गाँव की आइया। लिहाजा इस पर आप सब गौर करें, आपस में क्या करें, किसको बनाना है, सफाई से मौजूद है। मैं अपनी यही बात पर इत्फाक करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ख्वाहिशात होंगी, हमारे जो ख्यालात होंगे उनके मुताबिक हमें अच्छा आदमी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने ज़्यादा अमल की या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ल मक़ाम जनाब सरपंच साहब, हमारे सर के ताज हाफिज़ कुरान जनाब हाफिज़ुल कारी अबू जमील साहब, हमारे जितने भी नौजवान हैं और बुजुर्ग हैं, मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। मेरे मौजूद सामीन किराम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को आज के दिन के अंदर यहाँ एक जगह जमा होकर के आपसी सलाह और मशवरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ जमा होना, बैठना, बातचीत करना, सलाह मशवरा करना हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे पूरे कुल्ले के लिए अल्लाह ताला इसको रहमत का बाइस बनाए। कुरान करीम की एक आया मुबारक आप हज़रात के सामने तिलावत की, जिसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो। क्या फरमाया? पहले कहा आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब कहो तुम बात तो बात सच्ची कहो, सीधी बात कहो। आज हम तीसरी मर्तबा जो है यहाँ पे आए हैं, और यहाँ हम लोगों को जमा करके, मैं तो खुल करके बात कहूँगा, अगर किसी को बुरी लगे तो मैं जो भी बात कहनी है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कहनी है। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, तो मोहब्बत करो अल्लाह के लिए और बुग़्ज़ करो तो अल्लाह के लिए। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज तीसरी मर्तबा आज हम जमा हुए हैं एक मसले के ऊपर। पहले दिन हम जो है लुंडी वाले लोग जो है तो यहाँ नहीं आए, और लोगों ने खुल करके ये बात कही कि लुंडी वाले चगत्ता बरादरी के ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पंचायत घर के अंदर जाकर के थूक के मन पकाए जा रहे।
اور وہ جو लुंडी वाले, ये मैं खुल के ये कह रहा हूँ कि लुंडी वाले जो ये कह रहे थे कि पंचायत घर के अंदर जा कर के थूक के मन पकाए जा रहे हैं, और आज वो बात साबित हो चुकी है कि यहाँ थूक के मन पकाए जाते हैं। किसी आदमी को पूछा नहीं जाता है क्या मेरा और आपका कोई वकार नहीं है, क्या मेरी और आपकी कोई इज्जत नहीं है, कि आज हमें वहां से बुला करके और यहाँ बिठा करके दो बातें करके और कहा जाता है आज की डेट मुलतवी कर दी जाती है, कल को आ जाना। फिर बुलाया जाता है, फिर बेवकूफ़ बनाया जाता है और कहा जाता है कि तुम जो है चले जाओ, फिर हम बुला लेंगे। क्या हम बुलाने के लिए रह गए? क्या हमारा कोई मकाम नहीं है? क्या कोई हमारी इज्जत नहीं है? क्या हम किसी काबिल नहीं है? क्या जो आदमी अगर खोलना है तुम्हें अपने बांध खुद ही खोलना है, खुद ही बांधना है, फिर हमें बुलाने की क्या जरूरत है? हमें क्यों बुलाया जा रहा है? बार बार क्यों हमें यहाँ बुला करके रुस्वा किया जाता है? कहा जाता है कि आइए और हम जो है ना फलाना काम कर रहे हैं, मगर जो है ना बाद में जब बात नजर, पहले हमने कहा कि एक जुमे को बैठे, दूसरे जुमे को बैठे कि सोमवार के दिन आना है और हमने इस बात को ख़त्म करना है। सरपंच साहब ने खुद कहा कि आज जो है सोमवार वाले दिन जो है आखिरी डेट होगी, इसके बाद कोई डेट नहीं दी जाएगी। यही कहा था साहब ने, सरपंच साहब ने कहा कि ये आखिरी डेट होगी। सोमवार के दिन मौसम खराब हो गया, कहा कि मंगल वाले दिन फिर डेट आ जाती है, फिर नोटिफिकेशन आ जाती है कि हम मंगल वाले दिन नहीं बल्कि अब जो है परसों वाले दिन जो है बुध वाले दिन जो है हम आपस के अंदर बैठ के सलाह मशवरा करें। भाई बुलाना ही था। आज इस वक्त तक ये देखें कि हमने बात किससे करनी है, किससे बात करने के लिए बैठे आज हम? आप ही सोचे अपनी जगह, क्या इसी तरह दाल दलने के लिए हम आके बैठे हैं? किसी मकसद के लिए बैठे हैं ना। किससे बात करेंगे, किस मौजू पे बात करें? बात तो हमने इस पर करनी है कि हमने नंबरदारी के लिए एक आदमी को चुनना था, चाहे वो कोई भी हो। अगर आज हमने बात जो करनी है वो इस बात मौजू पे करनी है कि अगर अभी तक 3 मीटिंग बुलाई गई जब किसी के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, रात जो लिस्ट निकल के आई है उसके अंदर एक आदमी का नाम कैसे ओपन हो जाता है? हम इस चीज पे ऊपर बात करने के लिए आए हैं ना, ये पूछने के लिए आए हैं कि भाई क्यों आया ये नाम? अगर लोगों ने अपनी राय दी नहीं, किसी ने बनाया नहीं, तो फिर ये नाम क्यों आया? क्या हम लोग बेवकूफ हैं? क्या दुनिया के अंदर, पूरे गांव के अंदर कोई और आदमी ऐसा नहीं रहा है कि जो इस काम को संभाल सके, जो इस काम को देख सके? हम मानते हैं कि जहां बहुत सारे काम पहले अच्छे भी हुए हैं और वहां बहुत सारे काम जो है ऐसे भी हुए हैं जो सामने लाने के काबिल नहीं है। आज मैं खुल के एक बात कह रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपके सामने 5 जो है ऐसे मौके बताता हूँ कि जिसके अंदर आवाम को रुस्वा किया गया और 2 आदमी को जला सुरखुरु करके बाहर निकाल दिया गया। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम जो है अपना नुमाइंदा जो चुनते हैं वो सिर्फ चेहरे को देख करके बात करता है, वो असली बात नहीं कहता। जिस तरफ पलड़ा भारी देखते हैं उस तरह बात करने लगते हैं। आज हमें नहीं, मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ, हमें नहीं चाहिए कोई नंबरदार, हमें नहीं कोई चाहिए सरपंच, हमें कोई मेंबर नहीं चाहिए, इसलिए कि जो हमारे हक की बात न करे। आज अगर केस थाने के अंदर लगता है, अगर मैं अपने जेब से 50,000 रुपए दे करके अपने बच्चे को अगर छुड़ा के लाता हूँ, मुझे किसी को मेंबर बनाने का या नंबरदार बनाने का या सरपंच बनाने का कोई क्या फायदा? एक आदमी जो है, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी सबको बुलाता है, पूरे गांव को बुलाता है, पूरा दिन मैदान के अंदर भूखा प्यासा बिठाता है, बाद में उठते हैं, कोई बात, पूरे गांव की कोई इज्जत नहीं, पूरे गांव के मोहल्ले की कोई वैल्यू नहीं, सारे बैठने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। एक आदमी को शुरू करके अलादा कर दी तो भाई तेरा हक है। पहले उससे भी ये भी तो पूछा जाता, क्या तू किसी के साथ कैसा चल रहा है जो तेरे साथ कोई चले? हक बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, सच्चाई बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और इसीलिए आज हम जो है, ठीक है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, तो कहने लगे कि नंबरदारी जो है फागला में चली जाने दो, चाहे फागला में है, सनई के अंदर जाए चली जाएगी, जाने दो, सनई के अंदर चली जाए, हमें क्या फायदा? जैसे आज हम देखते हैं 3 चीजें हैं, डीलर हमारे गांव का नहीं, चौकीदार हमारे गांव का नहीं,
पोस्ट ऑफिस हमारे गांव का नहीं है। एक नंबरदारी अगर वो भी भागला चली गई तो कौन सा फर्क पड़ने लगा। साल के अंदर एक मरतबा काम पड़ता है, किसी तस्दीक लेने की जाके भागला चले लेंगे। जैसे सुबह किसी नहीं से लेते हैं, लिसाने से लेते हैं। आज जो है आप ये अंदाजा सोचे ना आप अपनी जगह क्यों बैठे हैं जमा हुए, क्या मकसद थे लेकर आप क्या किस मकसद को लेकर के आप यहाँ पे आए हैं? क्या खाली बैठे थे धूप देखने के? आज धूप निकली है, कल बारिश या धूप देखने के लिए बैठे। कहाँ है हमारे नंबरदार? कहाँ है नंबरदार सब? कहाँ है जो सबका जिनकी जिम्मेदारी थी ये काम सौंपना था? उन्होंने सामने खड़े होकर कहते भाई एक आदमी को मैं रिटायर हो गया हूँ, ये है मेरी जगह आदमी, क्या तुम सारे इसकी हिमायत करते हो या नहीं करते हो? रात के अंदर उठ करके बैठ के फैसले करते हैं और दिन में लोगों को आके सुना देते हैं, सिस्टम निकाल देती है। ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आज जो है तालीम याफ्ता लोग हैं, वो पहले लोग नहीं जो लकड़ियां ढो ढो करके घरों के हल चला चला करके खेतियां कर करके काम करने वाले। आज तालीम याफ्ता लोग हैं, आज कोई किसी को मानने वाला नहीं। जब तक मानेंगे, जब तक असूल के साथ चलेंगे, जब असूल के साथ नहीं चलेंगे हम किसी को नहीं मानेंगे, किसी के साथ कोई बात नहीं करेंगे। अगर हमारा राय है, हमारा हक है तो हम सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। अगर हमारा सरपंच, आज मैं सरपंच साहब से सबके सामने पूछता हूँ, हमने गांव का एक सुमेदार बनाया हुआ है, गर्व का हमारे ताज है। अगर सरपंच साहब से मैंने रात को पूछा कि भाई ये लिस्ट के अंदर नाम कैसे आया, सरपंच साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं। अगर गांव का एक जिम्मेदार है, अगर उसको अगर जो है इतनी बड़ी बात हो जाती है, अगर उसको खबर नहीं, मुझे और आपको क्या खबर होगी? कोई खबर है? किसके ऊपर हम एतबार करें? किसके ऊपर एतबार करेंगे? आप किसके साथ बात करेंगे? किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएंगे? ये मेंबर और जिला सरपंच और नंबरदार किसके लिए बनाए जाते हैं? पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं ना। जब पब्लिक का कोई काम नहीं होगा तो हम किसके साथ बात करेंगे? फिर जाकर चले जो है, अब देखिए हमारी बात अगर होती है, हम जाकर हमारी कचहरी जाकर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है, डाक बंगले के अंदर कचहरियाँ होती है, ईदगाह के अंदर कचहरी होती है, थाने के अंदर कचहरी होती है। अमीद मनाफा करके हमारी कचहरी में बैठता है, तारक मनाफ हमारी कचहरी में बैठता है। हमारा क्या फायदा है? हमारा यहाँ बैठने का फायदा क्या है? क्या हमारे गांव में दीनदार लोग नहीं है? क्या हाफिज़ कुरान नहीं है? क्या दीन को समझने वाले लोग नहीं है? क्या दुनिया वाले दुनियादार MA BEd किए लोग नहीं है? क्या वो सच्चाई की बात नहीं करते? इसलिए कि हम किसी के साथ जमाना नहीं चाहते हैं, मुंह देखी बात करते हैं। आई बात और कह दी, और जिन्हें कहा मुझसे, मैं सामने एक बात कहता हूँ, एक मसला था हमारा, तो मुझसे कहा गया आप जरा खामोश रहना, मैं आपको उनके सामने थोड़ा दबाऊंगा ताकि आपका फैसला हो जाए। आप सोचो जरा इस बात को गौर करें। मुझसे कहा गया कि आप खामोश रहना, मैं आपको उनके सामने थोड़ा दबाऊंगा ताकि फैसला हो जाए। हमें ऐसे क्या फायदा हमारी नंबरदारी का है? अगर ऐसा ही नंबरदार कोई बनता है, हमें कोई जरूरत नहीं आती नंबरदार की, हमें कोई जरूरत नहीं आती चौकीदार की। मैं अपने घर का खुद नंबरदार हूँ, हर आदमी अपने घर का नंबरदार है, हर आदमी अपने घर का सरपंच है। ये नहीं कि किसी, हम ये बनाते क्यों है कि हमें मुश्किल के वक्त हमारे काम आए। अगर हमारे मुश्किल के वक्त, अगर हमारी मुश्किल वक्त आए, आका दो जनाब इसलिए फरमाया कि जब तुम आपस के अंदर बात करो, मशवरा करके बात करो। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करने के मुख्तार थे, जो चाहते फैसला कर लेते। मगर आका दो जहां गज़वा तो ये ओद आता है तो सहाबाए किराम में दो जमातें हो गई। नौजवान कहने लगे हम मदीने से बाहर जाकर के जंग करेंगे, और कुछ लोग जो समझने वाले थे वो कहने लगे मदीने के अंदर आकर के। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा किया, देखा कि बाहर जाने वाले अंदर वालों के ऊपर हावी है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में जाते हैं, वहाँ से जीरा तन होकर के बाहर आते हैं, कहा कि अब जंग जाकर मदीने से बाहर जाकर होगा। अब ये देखिए कि मशवरा करके तो फैसला किया। आज हम मशवरा करते हैं कुछ और काम करते हैं कुछ। इसलिए जो है मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब जो है संजीदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, होश के नाखुन ले, जरा सोचे, अपना हक लेना सीखे, जरा अपना हक लेना सीखे। जरा कोई किसी को हक घर में नहीं देगा जब तक आप बोलेंगे नहीं,
अपना हक नहीं लेंगे, अपना हक लेने की आदत डालो। ये दब कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना हक इस्तेमाल करो। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिस मकसद के लिए हम आए हैं, बुलाएं नंबरदार साहब को, आमने सामने बैठ करके दो बातें करेंगे अल्लाह के हवाले। उसके बाद में जनाब इमदाद अली साहब अगर कहीं हैं तो वो सामने आए, आप भी अपने ख्याल रखेंगे क्योंकि आप कैंडिडेट हो उसमें। जैसे कि हम सबने रात को देखा कि हमें यहाँ बुला के किया गया कि हम नंदा खुलेंगे तो रात को इस्तेमाल आ जाता है, हम सब की निंदा करते हैं। हमें सब बुरा लगा है कि हमको यहाँ बुला के हम लोगों ने पूछा नहीं गया कि कौन बनेगा। ठीक है कि इसमें ये पढ़े लिखे लड़के वो जो भी बने, हमें किसी से एतराज़ नहीं है, उम्मीदवार जी का लड़का बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम सब से ये पूछना चाहिए ज़रूरी था, हम लोगों को यहाँ बुला के ये मकसद था कि हमारी राय भी लेना ज़रूरी थी, लेकिन हमारी किसी की राय नहीं ली गई, तो हम सब इसके खिलाफ हैं बस। उसके बाद मैं जनाब मोहम्मद फैज़ मजीद से गुजारिश करूँगा क्योंकि उनका लड़का भी इसमें कैंडिडेट था, वो भी अपने ख्याल आते। हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद जो मैं करूँ तो आपको बता, क्योंकि मेरे ख्याल में 3-4 नोटिस निकल चुके हैं इसी सिलसिले में कि भाई आओ बैठे और हम ये फैसला करें। अब लोग बैठे, 2 बार बैठे, 3 बार बैठे, 4थी बार बैठना तो रात को ही एक लिस्ट सामने आ जाती है। अब आज ये बातें करनी मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक फजूल पन, क्योंकि हमें फजूल एक टोकरी में रखा गया, हमारी उस इज्जत को नहीं समझा गया कि भाई ये गांव के लोग बुलाए गए हैं, इनसे मशवरा लें। अगर बुलाया है तो फिर इनसे मशवरा पूछना था, इनसे फैसला लेना। अगर इलेक्शन पे भी बात आ जाती तो गांव का कोई बनता ना, बाहर से कोई नहीं आ जाता, हो सकता है इब्रार ही बन जाता। अगर इब्रार के साथ अक्सियत ज़्यादा है तो हम भी उसके साथ हैं, ये कौन सी बात। लेकिन यहाँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो रात को फ़ोन करते हैं, हाँ जी आपका क्या ख्याल है, और उधर रिकॉर्डिंग खोल के रखी होती है, रिकॉर्डिंग जाके दूसरे को सुनाते हैं, भाई फलां आदमी ये कह रहा है, भाई यहाँ से निकालो और कोई भी बन जाए। भाई मैंने गाल तो निकाली नहीं, मैंने सही कहा। हमें आज तक, जैसे मौलवी साहब ने कहा, हमें आज तक फायदे के बजाय नुकसान होता रहा, क्योंकि हमने सरबराही गलत चुनी। मैं आज भी कहता हूँ, अगर हमारी सरबराही गलत ना होती, हमारे ये खिलवाड़ ना होती। आप लोगों की नज़रों के सामने है सब जो खिलवाड़ हो रहा है, कोई किसी को मुंह पर सच आके कहने के तैयार नहीं, चाहे कोई हाफिज हो, चाहे कोई मेंबर हो, चाहे कोई खड़बेंच हो, कोई भी नहीं कहता। एक आदमी अगर कहता है तो उसके पीछे पड़ जाता है। कौन कहता है? आज मौलवी साहब ने 2-4 बातें की और मेरे दिल को लगी, मैं उनके साथ, क्योंकि गांव है, हमारा माशरा है, हमारी बरादरी है, हम गांव में रहने वाले हैं, हम बाहर से तो आए नहीं, हम एक माँ बाप की औलाद हैं अगर कोई समझे। लेकिन हमें क्या समझ आती है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां। हम कभी दीन के नज़दीक नहीं आए, हमने खिलवाड़ करना सीखा है, हमने तकरीबकार नहीं करनी सीखी है, हमने जोड़ना कभी नहीं सीखा। हमने ये सोचा है किसी का पानी अगर लगा है तो उसको किस तरह खेड़ना है, उसको नुकसान किस तरह करना है। हमने किसी का रास्ता बंद करना है तो किस तरह करना है, कौन सी पॉलिसी चल रही है। कौन कहता है किसी को सच? मुझे बताओ, एक आदमी खड़ा होकर कोई कहेगा मेरे बारे में किसी ने सच कहा हो, मेरा फैसला। कोई आदमी कह दे मैं मान जाऊँ, कोई नहीं कहता। सब पॉलिसी करते हैं, सब रात को होते हैं मेरे साथ, सुबह होते हैं बरकत जी के पास, और शाम को दूसरी शाम को तीसरे के पास। नहीं आप ठीक है भाई, वो गलत। भाई यहाँ तक हुआ कि दीन के साथ गड़बड़ हुआ, किसने फैसला किया? किसने इमाम साहब का साथ दिया? मुझे कोई आया के बताए सामने इमाम साहब, बेशक वो हमारा छोटा लड़का है, लेकिन है हमारा इमाम, हमने बनाया हुआ है ना, वो दीनदार है इसलिए बनाया। उसका साथ किसने दिया? 3-4 केस हो चुके हैं, किसका फैसला हुआ बताओ मुझे? आया कोई सामने?
कोई सामने नहीं है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। जब यहाँ ये इम्तियाज नहीं रहा कि बहन को बहन नहीं देखा जाता, भाभी को भाभी नहीं देखा जाता, किस रिश्ते की पहचान रह गई? फिर उन लोगों को दबा के पहुंचा मार के अंदर बैठा दिया जाता है। आपने दीनी एतबार से उनको बुलाना था, दीनी एतबार से उनको बुला के पूछना था कि भाई आप दीनी लोग हैं, आप दीन के माशरे में रहते हो, आप मुसलमान हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या माशरा है? किसने बुलाया, किसने पूछा? मैं इसलिए ये कहता हूँ भाई, आपने जो राइट लेके आए हो, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, लेकिन कोई खड़ा हो आपके साथ। फिर आज यहाँ बातें करके आप अपने घर बैठ जाओ, कोई बात चलने वाली। अगर आपको मैं मंजूर नहीं, सरपंच मंजूर नहीं, आज़ाद जी मंजूर नहीं, गांव में लोग बाशऊर हैं, आप कमेटी बनाओ ना। आपने क्यों नहीं बनाता? अगर आप इतना नहीं शूर हो तो कमेटी बनाओ। क्यों नहीं कमेटी बनाती इस हालात को सुधारती? क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो सुरनकोट में जाके, लसाना में जाके? कहाँ कहाँ हमारे बेटी को उनके फोटो चले गए, कहाँ कहाँ हमारी वीडियो चली गई, कहाँ मुँह रखोगे आप क्या कहते हो मेरी बेइज्जती है? नहीं, पूरे गांव की बेइज्जती है, धुंधक की बेइज्जती है। धुंधक पे क्लिक लग रहा है। किसको किसी ने मना किया, किसको रोका? इस पे तो आज की है कि आप गलत करके आए हो, इसके दायरे में खड़े हो जाओ। किसने खड़ा किया? रात को बैठ के किसी कमरे में उसका फैसला हो जाता है। क्या आज इसके बाद दूसरी बहू बेटी महफूज है? किसी की इज्जत महफूज है? नहीं आप लोग कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो घर बैठ। अगर करना चाहते हो तो फिर खड़े हो अपने हक के लिए, फिर इंसाफ के लिए, फिर दीन के लिए खड़ा हो। मैं तो इसी पे इत्फाक करूंगा, लेकिन ये कहूंगा जरूर कि इकट्ठे होके अगर मैं गलत हूं तो मुझे वहां खड़ा कर, भाई तू गलत है, तूने गलत किया है, इसकी सजा तुझे देगी। समझा? ये क्या हुआ? मुझे खाली दी, आपकी जगह आप दी। जो मेरा उकसाने वाला है या मुझे मेरे पर एतराज करने वाला है, जी आप अपनी जगह थी। तो गलत कौन है भाई? गलत को भी ढूंढो, वो कहाँ है? अल्लाह। अगर किसी मर्द की गैरत देखनी है तो उसकी औरत को देखो। अगर किसी मर्द की गैरत को देखना है तो उसकी औरत को देख के पता चल जाता है कि इसका मर्द कितना गैरतमंद है। तो यहाँ हमारी औरतें कपड़े उतार के खड़ी दिखा रही हैं लोगों को, हमारी गैरत कहाँ गई? कहाँ गई जरा बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि सरकारी मशीनरी पे मत रहें, ये बेईमानी मशीनरी पे मत रहें। अब सब जी शोर है, कमेटी बनाए यहाँ। हर माहौल में, हर जगह पे कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, कमेटियाँ काम करती हैं, कमेटियाँ बड़े बड़े ट्रस्ट बना चुकी हैं, कमेटियाँ बड़े बड़े काम कर चुकी हैं। तो क्या हमारे लोग इस काबिल नहीं है कि आपने भी कोई सिविल सोसाइटी बना ले? एक सिविल सोसाइटी की कमेटी होनी चाहिए जो इन चीज़ों पे नज़र रखे, जो सरकार के कामों पर भी नज़र रखे और हमारे कामों पर भी नज़र रखे, ताकि हालात को ठीक किया जा सके। दूसरी बेगैरती हमारे अंदर ये है कि बिल्कुल मौलाना साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारा डीलर कहीं का, चौकीदार कहीं का, सिस्टम ही उल्टा है। अब एक डिपू था धुंधक में, 2011 में जब मुझे मौका मिला तो हमने उस डिपू की खोज की, उस डिपू के कागज निकाले गए। उस डिपू में मुलाजिम था मंडी का एक आदमी, उस डिपू को यहाँ से बंद करवाया गया, उसकी चीनी में रेत डाली गई उसको भगाने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए यहाँ। वो भाग गया, वो नौकरी छोड़ गया, आज वो मुलाजिम है, मास्टर रिटायर होने वाला है। पर फाइल हमें जब मिली तो हमने फाइल को प्रोसेस किया, उसको दोबारा रीड किया, रीड करने के बाद उसको तैयार किया। 14 गांव धुंधक के डिपू के साथ में। कितने गांव? 14 गांव का डिपू है धुंधक में। ये धुंधक वालों सब सुन लो कान खोल के जरा। अगर 14 गांव का डिपू धुंधक में है तो 14 गांव अगर राशन धुंधक में लेने आएंगे, धुंधक की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। कल तक हमारी रोड की मुखालफत हो रही थी, आज रोड मंदिर के साथ टच होने से धुंधक की कीमत बढ़ी है या घटी है? हमारा शहर बना है, हमारी इज्जत बनी है। तो वो डिपू डायरेक्टर ऑफिस तक चला गया, सारा कुछ किया, वो डिपू सैंक्शन होके आ चुका है, आप सबको मुबारकबाद है। पर उस डिपू में भी बेईमानी होने जा रही है। उस डिपू के लिए भी इंडोर बंदा तैयार किया जा रहा है कि मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने सबने फैसला लेना है। डिपो सरकारी है, बंदा सरकारी रहेगा। हाँ, जो बिल्डिंग देगा उसका बंदा चौकीदार जरूर रहेगा, ठीक है, उसका बंदा चौकीदार जरूर रहेगा। तो उसके लिए भी फैसला हम सब ने लेना है। मेहनत किसने की है, जदोजहद किसने की है,
इस पर फाइट किसने की है, हक किसका है, या गांव में ज़्यादा बेहतर कौन है, हम सब ने मिलकर इस पर भी फैसला लेना है, वरना ये सनई और लसाना के आगे सर झुकाना छोड़। मुझे तीसरी बात मौलाना साहब की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हमारे गांव के फैसले जाके सुरंगकोट लोग करें। अरे इस हद तक हम गिर चुके हैं, इस हद तक हम चले गए हैं। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। मैं आप सबके चेहरों को देखकर मुरझाया हुआ चेहरा नजर आ रहा आपका। आप अपने चेहरों के अंदर अमान की ताजगी लाएं, जुर्रत लाएं, हिम्मत लाएं, सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब तक हम एक कमेटी नहीं बनाएंगे, जब तक हम किसी सजा या सजा के काबिल को सजा नहीं दिलाएंगे, तब तक इस मसले का हल नहीं होगा। मैंने उस दिन भी यहाँ बैठे हुए कहा था, आज मीटिंग चली थी किसी मसले को लेकर, गौ बेटी का मसला था। मैंने कहा सऊदी अरब में, और शाह साहब बैठे थे सामने, मैं कहा शाह साहब, सऊदी अरब में चोरी वाले का हाथ काटा जाता, क्यों काटा जाता? वो इसलिए नहीं ये दोबारा चोरी नहीं करेगा, वो इसलिए कि इसको देख के और चोरी न करे। तो यहाँ आपने रातों रात फैसलों को छुपा लिया यार, आपने तो गुनाह को बढ़ाया है, आपने कम नहीं किया, आपने ज्यादा किया उसको। उन चीज़ों को ठीक करने की भी जरूरत है, हमें कमेटी की सख्त जरूरत है। मैं इसके बाद जनाब गुलाम मसूद साहब से गुजारिश करूँगा, वो भी आपके ख्याल। एक्चुअली आज मेरा यहाँ पर मौजूद तकरीर करने का नहीं है, क्योंकि मेरे साथ आवाम आई हुई है और ये आवाम ही तय करेगी, ये आवाम ही बोलेगी। मैं आखिरी पर जो बात कहूँगा, सरपंच साहब भी बैठे हैं और जिनकी हमें अभी तक ज़रूरत है, लम्बादार साहब वो अभी तक नहीं आए। हमारे इब्रार भाई आते, हम उनसे भी बात करते, सरपंच साहब से हमारी गुजारिश है कि उनको बुलाएं, क्योंकि ये यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा या कल्चरल प्रोग्राम या किसी की स्पीच सुनकर यहाँ पर लोग मज़े नहीं ले रहे। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि हम आपस में जो इत्तेफाक लेकर आए हैं हम उस पर बात करें। ऐसा कि तकरीर करने से या अदरवाइज और इशू जो गांव के हैं उन पर बात करने से मुनासिब नहीं मैं समझता, क्योंकि जो बात गुजर गई उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब पछताने की ज़रूरत नहीं है। जब मामलात हमारे गांव के होते हैं तो हम ही लोग वहाँ पर जो है वो क्या कमेटियाँ एक टीम बना लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं और एक दूसरे को नीचे ऊपर गिराने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे गांव के फैसले सुप्रीम कोर्ट होते हैं। सरपंच साहब आप कीजिए फोन उनको, उसके बाद लास्ट पर जो मेरी बात होगी इंशाल्लाह मैं आपसे करूँगा। इस वक्त मैं ये नहीं समझता कि हम एक दूसरे को तनकीद करें, एक दूसरे को गलत बुरा भला करें, मेरी आज सोच नहीं है ये। छोटे बच्चे भी हैं इसमें, जैसे कि यहाँ आज मीटिंग करने का कोई मुद्दा मैं भी जिस बात के लिए यहाँ 2 बार और 2 बार बैठे हो, उनको बैठे पूरी नहीं एक दूसरे के ऊपर, मतलब जगह नहीं लगती। आज की सुबह चलो बाहर बैठे तो भूख लग रही, मैंने दिन नहीं कहा था यार बात करनी है तो एक दूसरे के चेहरे को देख के बात करो ना। ये क्या हुआ, पीछे से हल्ला लग गया, वो हो गया, चलो वो भी जितनी मेहनत की थी 2 चक्कर लगाए। देखो मैं बिजनेसमैन हूँ, शटर बंद करके आया हूँ, टाइम नहीं, हर बंदा मजबूर है। बहुत सारे लोग जो है ना आए वो अपनी मजबूरी नहीं लेके आए, वो ये सोच रहे हैं कि यार क्या हुआ क्या। आज भी हमने सोच रहे हैं ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे गुनाहगार बदकार इंसान आज सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे लोग हैं। मैं किसी की वो नहीं करूँगा कि वो गलत है, वो मेरे पास नहीं। मैं सिर्फ एक कहावत जो सुनी है वो पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। एक शिकारी कुत्ते की और खरगोश की रेस लगी। शिकारी कुत्ते ने कहा भाई खरगोश तो आज मेरे साथ रेस लगा। तो खरगोश ने कहा भाई तेरी इतनी लंबी बड़ी टांगें तो मैं छोटा सा, मैं तेरे साथ कैसे रेस लगाऊंगा। मैं कहा भाई लगा। उसने आपस में कोई इनाम रख लिया, भाई ये इनाम तेरे लिए, क्योंकि खरगोश को गाजरे बड़ी पसंद है। उसने कहा भाई तुझे इतनी गाजरे में पसंद है। उसने कहा ठीक है, मैदान में रेस लगी। शिकारी कुत्ता अपनी जगह दौड़ता रहा। वो अपनी जगह ये मजबूत था कि मैं बड़ी टांगे मैं दौड़ूंगा यार, खरगोश बच्चे को क्या मानता हूँ। तो वो इसी गुरूर में रह गया और खरगोश जी। खरगोश को पूछा गया वो मैंने भी तो बड़ी रेस लगाई है। शिकारी कुत्ते ने कहा मैंने भी बड़ी रेस लगाई, मगर तू जीता कैसे, बड़ी सुनने की बात है। खरगोश ने जवाब दिया जो मेरे दिल को भी बात है। उसने कहा तेरे गल में
तो शिकारी कुत्ता तेरे गल में तेरे गुलामी का पट्टा है और मेरे पास गुलामी का पट्टा नहीं है। मैं दौड़ा हूँ अपनी जरूरत के लिए, मैं दौड़ा हूँ अपने उस मेहनत और उस चीज़ को पाने के लिए। आज हमारे अंदर भी यही हो गया कि हम थोड़ा सा दौड़ते, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं उस दिन भी बड़ा खुश हुआ, आज खुश हुआ हूँ कि यार सारी महफिल एक टेबल पे बैठी है। तो वो उस दिन भी नज़र होगी थी कुछ लोगों को पेट में दर्द हो गया, बस लगे लड़ाई करने, क्यों लड़ाई कर रहे हैं? अगर आराम से जो फैसला हो रहा है वो अच्छी बात है, मगर आज बेरामी मैं अब नमदार साहब पता नहीं आए नहीं, उनसे लोग बातें करते हैं, क्योंकि जो जिनका नाम आया बात तो उनसे करनी है, ऐसे तकरीरें करना या उससे अच्छा नहीं है। तो जैसे आप लोग सब फैसला करेंगे, मैं भी आपको जहाँ जो ज़रूरत है चलने के लिए तैयार है, उनको बुलाया जाए। तो बाकी ये बात एक और मैं कह दूँ कि जरूरत हमारे में रही नहीं है। जरूरत का मैंने फैसला वहाँ देख लिया मंदिर के सामने, मुझे काफ़ी लोगों ने आपकी जगह दी है, और बेगैर तो खुश हो रहे हो। आज मेरी गई है, कल आपकी जाएगी, परसों दूसरे की जाएगी। अरे कम से कम जो हमने खड़बेज बनाए थे कोई दिखाई नहीं दिया वहाँ सामने। ऐसे खड़बेजों को क्या चाहिए यार, जो जब बैठते हैं तो तकरीरें शुरू कर देते हैं, वो तकरीरें नहीं है। अगर ये खड़बेज जो बने हुए थे हमारे, वो शहर चंद खड़बेज नहीं है, उन खड़बेजों को चाहिए था ना यार। हाँ भाई आओ, किसी ने कॉल की आज महफिल में यार अपने आप को ये चढ़ाना वो चढ़ाना, दिस इज नॉट राइट। राइट वो है जब आप किसी के लिए लड़ो, अपने लिए अपने आप को ये कहना वो कहना। मैं तो कहता हूँ यार दिखावा नहीं करना, बिल्कुल ये जिंदगी कुछ दिन है, क्या है दिखावा। आज भी मुसलमानों को मैं ये गुजारिश करूँगा जितने भी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ना, ये जात पात ये सब छोड़, क्योंकि मैं बड़ा पछताया हूँ। मेरे बाप की किसी शख्स ने बेइज्जती की है, मैं आज उनको वार्निंग दे देता। मैं चाहे तो घसीट भी सकता था, अल्लाह ने इतना सब कुछ दिया होगा। मैं आज ये नाम नहीं लूँगा, मगर मैं ये कहूँगा जब अपने घर शीशे के ऊपर गुस्से के घर नहीं मारना चाहिए। अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करूँगा, कल आप मेरी इज्जत करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। जो अपने हाफिज साहब गलत बात। अगर मेरी कोई गलती है मुझे आप अपनी जगह बताओ जरूर, मगर महफिल में भी बताना यार ये आप गलत कर रहे हो, तो बाद में बताने का क्या फ़ायदा? बाद में अपने जज्बात दिखाने का क्या फ़ायदा? कोई जज्बात नहीं है। अगर चंद हमारे गाँव के लीडर हैं, मैं इनसे दिल मेरा मर गया बल्ला, इसलिए मरा है कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते हैं। ये गाँव का मसला है, 2-3 बार बैठे ना, चलो किसी दूसरे गांव में नहीं देखा ना, चलो अपनी जगह बैठते पढ़ते हैं, मगर जो चीज़ हमारे से जाती हो ना, मैंने सरपंच साहब बने, मैंने घर जाके बोला भाई वो सामने, मैंने कहा भाई सनई गांव की सड़कों पे जोर आपने नहीं मारना, तो नहीं मेरे बात पे कोई असर नहीं। मेरा नजरिया था इनको बताना, जाओ ना यार किसी को जाके बोलो सोमो लगाओ, सनई जाके में बढ़ो, वो ऊपर मूड़ी तक जाए। यार आज हमारी करेंसी जीरो हो गई है, इनकम हमारी जीरो हो गई है, क्या करोगे नंबरदार और सरपंच बना के? उसको वो क्या कहते हैं, वो बना के उनकी चटनी खानी है? नहीं बना लो ना भाई, बनाओ जितने बनाने बनाओ, मगर कुछ नहीं है। आज हमारी दुकानदारी फेल, देखो मैं बड़ा कारोबार हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे की फुल मार्केट है, फेल है, कुछ भी नहीं है, हमारा बिजनेस पॉइंट नहीं है। इस चीज़ों पे जोर मारो, ये मत मारो वो है यो है, ये सारा कुछ होता रहेगा। आज मेरी बारी है, मुझे आजमाओ, कल दूसरे की बारी है, उसको आजमाओ। क्या होना चाहिए? जैसे हिमाचल प्रदेश में एक सरकार आती है ना, हिमाचल प्रदेश, उसमें हर बार सरकार को चेंज किया जाता है, चेंज करो। ये नहीं है रिश्तेदारी यार, ये मेरा रिश्तेदार है, बड़ा बोलने वाला नहीं, चेंज करो। तो सबसे पहले उठाने के लिए धुंधक में भी एक डीलर आता है जो राशन देता है, हमारे घर में देके जाता है, वो भी आके दे सकता था, वो देता भी रहा है, पर हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम उसको यहाँ एक को बुलाना गवारा नहीं समझते, सब वहाँ जाना अच्छा समझते हैं। तो आज एक फैसला कर लें कि हमने अपना राशन धुंधक के अंदर ही लेना है, किस जगह पे लेना हो फैसला कर लें। धुंधक के अंदर ही हमारा डीलर सरकार का काम है होम डिलीवरी करना। ये बात आकर जी इस बात को रोको आप,
धुंध के अंदर घर होम डिलीवरी राशन और गैस सिलेंडर देना सरकार की जिम्मेदारी है। हम गलते हैं, हम जाते हैं दूसरे के पास, हम होम डिलीवरी मांगते ही नहीं है। किसी जगह को भी नोट कर लो, सरकारी आदमी आने की जब तक हमारा डीलर बनता, वहाँ भी तो सरकारी है ना डीलर। अब 200 बंदे पे एक सरकारी बनेगा, अब बनेगा ना डीलर। इस वक्त हम ये चीज तैयार कर लेंगे कि हम अपना राशन अपने गांव में लेंगे। ये पहला फैसला हमारा सबसे अच्छा फैसला लेंगे। हमारी इज्जत बचेगी, हमारा किराया बचेगा, हमारा टाइम बचेगा। ये फैसला आज आप कर लें। देखिए दूसरी बात, कहते हैं ना सारी रात रोई भरिया न सोई, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं आपके सामने आप लोगों के लिए अपने बेटे का नाम हटाते हुए इस मजलिस से जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस मजलिस में ये जाहिर ना हो कि ये कुछ कर पाएंगे, तो हदीस पाके वहाँ से चले जाना चाहिए। बाकी आपको जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा, गांव के लिए खड़ा रहूँगा। पर अगर गांव के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो, एक रोड का प्रोजेक्ट हो और वो प्रोजेक्ट बगैर I-30 के वो चेंज नहीं हो सकता, वो किस तरह चेंज हुआ यहाँ मनमानी है भाई, कोई पूछने वाला नहीं। मैं एक डिपार्टमेंट क्यों चेंज हुआ वो प्रोजेक्ट, क्यों पैसा दूसरी जगह गया, जिस जगह का था वहाँ लगा क्यों नहीं? जी मैं आपकी बात लगना से चाहिए। सहमत हूं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नया सवाल में यहाँ ने डिपार्टमेंट से मैंने कंसर्न किया, उन्होंने कहा भाई आपकी DPR चेंज हो सकती है, अगर सनई वाले नहीं दे रहे मत जाओ उनके पास कॉल पकड़ने के लिए, कोई नई लोकेशन चेंज हो, नया हो जाए, अगर नहीं इस तरीके के काम जब हम करेंगे ना, हमारे गांव की इज्जत बनेगी, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हमारा गांव नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा, तो हम दूसरे की गुलामी से बचेंगे। तो बेहतर है कि हाजी साहब भी आ चुके हैं, उनका बहुत मशहूर हो के उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, गांव से बाहर रहते हुए गांव से प्यार है, इनका मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत अगर हम सब लोग रखेंगे तो फैसला अच्छा हो जाएगा। तो इससे के बाद मैं जनाब लियाकत अली जी से गुजारिश करता हूँ वो अपने खिलाफ का आधार करें, और मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे जनाब मौलाना फैज साहब, साबका सरपंच राना साहब, सरपंच अब्दुल हक साहब और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बड़ी खुशी के साथ, बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं दो बरादरी के बीच ननिहाल और ददियाल के बीच खड़ा हुआ हूँ आज, और पहली बार आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। और हम ये फख्र से कहते हैं कि हम वो पत्ते नहीं जो तूफानों से गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो के औकात में नहीं जो तूफानों से गिर जाएंगे, आंधियों को कह दे के औकात में रहे। ओ अल्लाह की कसम, ओ मुसलमानों आपको क्या हो गया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह कूनू मस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये लोग अल्लाह के साथ जुड़ते तो आज आप लोग मोदी के आगे न गिरते, अल्लाह के आगे गिरते, आप अपना अच्छा रैबर चुनते। अफसोस मुझे साफ बात से कहना पड़ता है कि आप लोग आज 10 दिन से 20 दिन से 1 महीने से अपना रैबर नहीं चुन सके। अफसोस, आप उलमाए कराम हो, आप इमाम साहब हो, मैं फख्र से कहता हूँ कि इशफाक राना साहब हर जगह थम के साथ खड़े होते हैं अल्लाह की कसम। जब ये पूछ बोले इन्होंने कहा ओ भाई नाश्ती पे जाओ ना पहाड़ी पे जाओ, अपनी अपनी गाड़ी पे जाओ, ये ना कहें कि ये दूर बैठते हैं। हम तरह तरह की खबर रखते हैं। आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि हमारा लीडर अच्छा होना चाहिए। ये बात नहीं कि अंदर बैठ के जनाब चुप करके फैसला, ये फैसला हमें किसी को मंजूर नहीं है। मैं अपनी ननिहाल ये हमें किसी को मंजूर नहीं है। अगर आप में है कोई मंजूर करने, जिस चीज को मंजूर नहीं आज खड़ा करें, हम नहीं मंजूर है तो आज खड़ा करें, क्या बैठ रहे हैं? इसलिए अपना रैपर चुनो। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि लबकिशाई हो जाएगी। तो अपना रैपर अच्छा चुनो, नमाजी इंसान चुनो, दीनदार इंसान चुनो, जिसको अल्लाह का खौफ भी होगा। अब किस बात ख्वाब में भूले हो भाई? जवानों अपने आप में शऊर पैदा करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती पकड़ो, देखो फिर दुनिया आपकी गुलाम होगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुए, मेरे वालिद मोहतरम भी आए हुए हैं,
बाकी लोगों का शुक्रगुजार हैं हम जो हाजिर हुए हैं लोग। आप लोग अंदर अपने अंदर जज्बा पैदा करो, अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह के हबीब के साथ जुड़ के रहो, दुनिया के आगे नहीं झुकेंगे अल्लाह की कसम। जाकर कलाम रसूल ठीक है, नई लमसदार बनेगा, नई सरपंच बनेगा, नई मेंबर बनेगा। हमारी 2 बरादरी इंशाल्लाह ऐसी हैं जो बिल मांगे ऐसे ही इंशाल्लाह ये हमारा लमसदार सरपंच। इतना शौर है हमें, ज्यादा कुछ ना कहते हो, इसी पर इत्तेफाक करते हो। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे भाई ने बजा फरमाया, एक बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, मैं ठीक करना चाहूँगा। मेरा जो अजीज है, कल आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा। जो बरादरियों 2 का नाम लिया वो नहीं लेना, हम सब एक, हम सब एक। अगर आप सब एक होते तो अल्लाह की कसम ऐसे हमारी बरादरी को ऐसे बिल्कुल अलग न करते। आप एक होते सब एक जैसे तो फिर आप नहीं। आज ये है कि मैं धुंध के अंदर, वो कहते हैं ना, एक शायर ने कहा है, देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में हम बट गए, इसीलिए अपने अपने मकसद से हट गए। आप तो समझ रहे हो? आप उसको ले लो बरादरी में, देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में हम बट गए, इसीलिए अपने अपने मकसद से हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, सर किसी में जंग लुटा सारे टूटे तीर। हमारे पास है क्या बचाओ? हम उलझ चुके हैं अपने अपने पीरों के खाते में। और धुंध के इस वक्त तमाम बरादरी के लोगों, एक बात बताने आया हूँ, सोए हुए शेरों तुझे आज जगाने। बात यह है कि 6 कैंडिडेट हैं, मेरी एक राय है, मशवरा है, राय देना मेरा भी हक है। उन 6 में आज कुरानंदाजी कर ले, जो चुना जाएगा वही हमारा नंबर। मेरी राय है, मेरी राय, ठीक है। बाकी मैं इसके बाद सरपंच साहब से गुजारिश करूंगा कि सरपंच साहब आपके जो नोटिस है उन नोटिसों का हमें जरा जवाब पेश करें। आप वो किस लिए देते रहे कि अगर आप लिस्ट कहीं अलग से आती रही तो आपके नोटिस का क्या मूल्य रहा, आपके उस नोटिस की क्या इज्जत है, आपकी उस सरपंची की क्या इज्जत है, जहां जरा आवाम के सामने बयान करें। अगर आपकी चालबाजी से ये काम हुआ है तो फिर आपको माफी मांग लेनी चाहिए आवाम से। अगर आपकी लाइलमी में हुआ है तो आप इसमें शमूलियत इख्तियार करके इसमें से पाल भाइयों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए। इससे पहले भी आप 2-3 बार इकट्ठे हुए। आज मैं देख रहा हूँ कि पहले नोटिस पे जो लोग एक भी नहीं था जिस वार्ड से, आज मेरे ख्याल में उस वार्ड से कोई बाकी रहा भी नहीं। मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि नायब साहब ने बोला है कि भाई शाम तक एक आदमी का नाम दो, तो मैंने बोला कल का टाइम दो, तो बोला चलो कल देख लो। इसीलिए आप सबको बुलाया था। उस दिन भी कोई मकसद हल नहीं हो सका क्योंकि 6 आदमियों के नाम आए थे, बल्कि 7 आदमियों, जिनमें से लुंडी वार्ड से एक आदमी भी नहीं था यहाँ पे। उनमें से भी गुलाम सिंह का नाम था। तो फिर जब उस दिन भी कोई हल नहीं निकला तो फिर अशफाक साहब ने, इन साहब ने मिलकर कहा ये 6-7 आदमी हम एतवार को बैठेंगे और ये 6-7 आदमी मिलके आपस में फैसला करेंगे कि किसको बनाना है। मैं इंतज़ार करता रहा कि बैठेंगे, बताएंगे, लेकिन किसी ने बैठना क्या, हम भी यहाँ आए लेकिन यहाँ बैठने के लिए कोई आया ही नहीं। और उसके बाद फिर एक नोटिस दिया, फिर आए। उस दिन मैंने आप सबको बोला था कल ये नहीं आप कहना कि भाई डीलर नई का है, चौकीदार लसाने का है और कल फागले का सर बन जाएगा, क्या नाम है खबरदार आप ये नहीं कल कहना। मैंने ये बोला था आप, लेकिन उस दिन एक बात सामने आई थी कि नमस्कार साहब ने भी कहा था कि हम नहीं बनेंगे नमस्कार, और
जब रात को एक लिस्ट आई, मैं तो अपने काम से लगा हुआ था, तो मुझे मास्टर राजू ने फ़ोन किया कि भाई कोई लिस्ट आई है नंबरदार की, इसमें इब्रार का नाम है। और मैं खुदा को हाजिर नाज़िर ला के बताऊँ आपको, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है कि नाम किसने दिया, क्या किया, किसने किया। आप रिजाइन कर दो ना, अगर सरपंच को नहीं पूछा गया तो एहतजाजी रिजाइन करो। इसका किसने नाम दिया है, ये क्या है। इस वक्त भी आप लोग ये देख लो, ये आप सबको पता होना चाहिए। आप यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं कि कौन कौन लोग यहाँ आए हुए हैं, कौन कौन नहीं है। ये आपको खुद एहसास होना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है। अपने मकसद के लिए लोग दूसरे को भड़काते हैं, दूसरे को पुश करते हैं, लेकिन आप खुद देखो यहाँ आप इतने लोग आए हुए हैं, लेकिन ये देख लो कि कौन कौन लोग नहीं आए हुए। जो डीलर की बात है, मैं कब से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भाई अपने राशन कार्ड यहाँ लगाओ, यहाँ जो डीलर दे रहा है उसी के साथ रहो। यहाँ देता है, हमारी माएँ बहनें यहाँ सेव है, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके देता है, क्योंकि वहाँ मस्के जो लगते हैं, मैं ये डर के नहीं कहता, शर्म की बात है, सच बात है, वहाँ जो मस्के लगते हैं वो इन लोगों को पसंद है। मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ। मैं हर चीज़ ये चाहता हूँ कि अपने गांव में चाहे कोई भी चीज़ हो, अपने गांव में। मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि हमारी कोई रोड सही से आए। मैं पहले भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ। मैं हमेशा अपने गांव को प्रायोरिटी देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने गांव में कोई चीज़ बने, हमेशा अपने गांव के लोगों को फ़ायदा हो, बल्कि बाहर के लोगों को क्यों फ़ायदा हो। आप आज भी शाम को जाके देखो, हमारे धुंध के लोग से नहीं 50-100 आदमी होता है। क्यों होता है? वो इसी वजह से हम लोग आपस में बटे हुए, हमारा आपस में इत्तेफाक ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लुंडी से जबड़ी, जबड़ी से लुंडी रोड मिल जाए, वहाँ से यहाँ आए, हम लोगों का अपने गांव में अटैचमेंट हो। लेकिन वहाँ आज़ाद साहब की ज़मीन आती नहीं, जो ज़मीन रोड में देंगे, वहाँ मेरी ज़मीन आती नहीं कि मैं दूंगा। जिसकी ज़मीन आती है वो ज़मीन देगा नहीं, तो रोड तो बनेगी नहीं। अटैच कैसे होगा हमारा गाँव? तरक्की हमारे गांव की कैसे होगी? जब हमारे गांव में तो वो पैसा कन्वर्ट भी तो नहीं हो सकता था ना, नहीं करना। जब हमारे हुंडी आपने रख दी, जब क्या हमारे गांव के लोग ही एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। तरक्की होगी, गांव में रोडें होंगी, हर कोई भी चीज़ होगी अपने गांव में होगी, उसकी तरक्की होगी। शाह साहब ने कहा कि एक डीपू सैंक्शन है, अगर सैंक्शन है तो उसको लाओ यहाँ। उसमें किसी को कोई एतराज़ हो तो आप बोलना, यार सरपंच ने ये एतराज़ किया है। अगर आप कोई चीज़ लाते हो, मुझे फ़ख्र होता है कि हमारे गांव में आती है कोई चीज़। मैं इंशाअल्लाह इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अशफाक साहब कोई चीज़ लाएँ, आज़ाद साहब लाएँ, दूसरा कोई लाए कोई चीज़, कि मैं उसके ख़िलाफ़ हो चला जाऊँ कि नहीं जी ये नहीं, मैंने क्यों नहीं किया, ये क्यों लिया। मैं इंशाअल्लाह उनके साथ होऊंगा, आप मुझे खड़ा पाओगे अपने साथ कहीं भी। और रही बात नंबरदारी, ये सब लोगों का राइट है, सरपंची सब लोगों का राइट है। बात तो इज्जत मानता शाह, बात तो दिल मानता। इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ है। अगर उसने इज्जत जिसको देनी है वो देगा। जिसको नंबरदार बनाना है वो बनेगा, जिसको सरपंच बनाना है वो बनेगा, जिसको नहीं बनाना वो भी तो खाना खाता है ना। हम सरपंच बन के कोई हवा में नहीं उड़ रहे। इसी ज़मीन पे आप जैसे, कभी मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मैं सरपंच हूँ, मुझे फलाने वोट नहीं दिए या मुझे फलाने ये नहीं कहा। मैं कभी नहीं कहा किसी को मैंने कभी ये बताओ कि मैंने किसी को साइन करते वक्त कोई ये जतलाया हो कि मुझे इस आदमी ने वोट ही दिए, मैं इसको ये पैसों का लोन लेता है, मैं साइन करके ना दूँ।
ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ कि जिन लोगों ने भैंसों या एनिमल के लोन लिए, मैं लिख के देता हूँ, मेरे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, किसी ने नहीं दिए, मेरे अकाउंट से पैसे कटते हैं। कोई आदमी पैसे के लिए देता नहीं, क्योंकि ये किस्तें नहीं देते और मेरे अकाउंट से कट जाते हैं। मैं हालांकि मैंने कोई गारंटी नहीं दी हुई, मैंने ये लिख के दिया है ना कि ये आदमी यहाँ का रहने वाला है, बता सकता है, आपने भैंस ले सकता है, बकरी ले सकता है, गाय ले सकता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। और जो ये कोई कहे कि सरपंच ये है, मुझे ऐसी किसी बात का इल्म नहीं है कि मैंने कोई लिस्ट में नाम दिया हो या मुझे कोई पता हो। मुझे राजू ने फ़ोन करके बताया कि इब्रार का नाम है। मैंने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं है। आज देखो आप पहाड़ी ग्रुप में एक लिस्ट चढ़ी है, तो मैंने वो बाद में देखी तो मुझे भी पता चला कि वाकई इब्रार का नाम था। हालांकि मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, और ये नहीं कि इब्रार नहीं नंबरदार बन सकता। इब्रार का भी हक है, गुलाम रसूल का भी हक है, अशफाक साहब के बेटे का भी हक है, अपने फैजल साहब के बेटे का भी हक है। कोई भी बने, लेकिन बनेगा तो एक ही, बनेगा एक। वहाँ 7 आदमी नहीं बन सकते, बनेगा एक। चाहे वोटिंग के हिसाब से बने, चाहे कुरानदाजी के हिसाब से बने, बनेगा एक, लेकिन वो सबका नंबरदार होगा। चाहे वो मैं हूँ उसमें, चाहे अशफाक साहब हो, चाहे आज़ाद साहब हो, चाहे दूसरा हो, नंबरदार वो सबका होगा। चाहे वो अशफाक साहब का लड़का बन जाए, चाहे अबरार बन जाए, चाहे गुलाम रसूल बन जाए, चाहे इमदाद अली बन जाए, नंबरदार वो सबका होगा। ये नहीं है कि वो नंबरदार चंद चाहे वोटिंग के हिसाब से भी होगा। ये नहीं कि 10-20 आदमी एक के साथ है, 10-20 दूसरे के साथ है, 50-100 दूसरे के साथ है। जो बनेगा वो सबका होगा। ऐसी बात नहीं, इलेक्शन होता है ऐसे ही होता है, एक टीम जीतती है, एक हारती है। वो हार के उसको बैठ नहीं जाना कि घर में बैठ जाए, सबके साथ चलना पड़ता है। और नवरदास साहब को मैंने फोन किया था, और वो बोल रहे थे कि पूछ आया हुआ कोई तारीख है शायद उनकी, इसलिए शायद वो यहाँ नहीं आए। अब उनके साहबजादे इब्रार साहब ये बताएंगे कि भाई इन्होंने ये लिस्ट में नाम किसने दिया, इनका नाम शाम का शाम तक तो इनको भी मेरे ख्याल में पता नहीं था। मैं शाम को यहाँ से गया तो इन्होंने भी नहीं बताया कि अगर ऐसी बात है तो मुझे बताना चाहिए था कि भाई ऐसा हुआ है। अब इस चीज़ का जो बता सकते हैं वो तहसीलदार साहब या नायब तहसीलदार, नायब तो नहीं है मेरे ख्याल में, तहसीलदार साहब बता सकते हैं ये नाम किसने दिया और कैसे आवा। बाकी अगर आप चाहते हो भाई कि जिस इंसान को आप चाहते हो नंबरदार, हमारा काम आप रिजर्वेशन लिख के देंगे तो आप लोग साइन करके दो, डीसी साहब को दो, आप डीसी साहब आगे इलेक्शन के लिए आर्डर करें या क्या करें, तो उस हिसाब से चलो, तो हम साथ हैं, मैं आपके साथ। शुक्रिया साहब। जहाँ तक सर राशि कहाँ है, किसी क्यों नहीं आया, उनका कोई नहीं आया, किधर है वो लोग, किधर है शफीक साहब, उनकी पार्टी कहाँ है, वो ऊपर वाले जो है चाचा आजम वगैरह, वो उन लोगों को कैसे 2 घंटे पहले पता था कि लिस्ट में नाम है, वो लोग क्यों नहीं आए यहाँ मीटिंग में, उन लोगों को कैसे पता था कि लिस्ट में नाम आया हुआ है। अगर 1 घंटा कोई आदमी उसको फ़ोन करता पहले या 2 घंटे वो बताता है कि लिस्ट में नाम है जी, दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो लोग मिलकर, उन लोगों ने मिलकर नाम दिया ना। तो सरपंच साहब को नहीं पता है, जो गाँव के जमादार उसको पता ही नहीं है, तो आम आदमी को पता है, इसका मतलब क्या है, वो लोग घर बैठे हैं। हम लोग यहाँ पागल की तरह रोज़ को रोज़ अतिथि दिन है ना, इस दिन यहाँ आके बैठे, क्यों बैठे, लंबादार भी, हमको कोई एतराज़ नहीं है इब्रार साहब से, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इब्रार साहब से, और किसी से मुझे नहीं है, नंबरदार बने तो बने, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि हमको ये जवाब चाहिए, चाहे सरपंच साहब से चाहे नंबरदार साहब से, कि ये नाम कैसे आया, ये नाम आया कैसे, एक दिन में मुझे नहीं चाहिए, मुझे हक ये ग्राम से बने, इब्रार बने, हमको कोई एतराज़ नहीं, जो मर्जी बने, हमको कुछ नहीं लेना, हमको कुछ नहीं लेना किसी से। लेकिन ये नाम कैसे आया, फिर सरपंच साहब को क्यों नहीं पता,
रातों रात को नाम क्या है? शफीक को मैंने फोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग आई, उसने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर शफीक कहाँ है? शफीक कहाँ है? कुछ और भी हो सकता है। चाचा आजम जट कहाँ है, जिसको 1-2 घंटे पहले पता चल जाता है कि नाम आया? सुन, वो कहाँ है? वो लोग कहाँ है? इसमें इस टाइम क्यों नहीं गया? खाली ये 4-6 गाड़ी यहाँ के आए हैं, बाकी लुंडी के लोग, हुंडी के लोग आए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? घर में गाँव में यही लोग हैं। पुरानी खोड़ी के 2-3 आदमी हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? घर में गाँव में इतने आदमी नहीं है भाई, गाँव में बहुत लोग हैं, 1200-1300 वोट है गाँव का। नहीं एक गल कर लो सरपंच साहब कुछ न किसी मैं वही बात, वो सरपंच साहब और नमदार साहब दोनों जवाब देंगे, ये कहाँ से आया, ये नाम क्यों आया? हमको जवाब चाहिए, नमदार जो बने वो हमको कोई तलब नहीं है। सरपंच साहब पूछो ना भाई किसने नहीं सरपंच साहब और नमदार साहब भी नहीं आए, वो शफीक साहब भी नहीं आए। अगर नंबरदार साहब ही काम है सरपंच साहब इसे न पूछ के दस ना भाई किसने दिया कोई अगर मीटिंग थी तो उनको आना चाहिए ना, उनके कहने से मीटिंग रखी हुई है। सरपंच साहब पूछ लेना जी इतनी बड़ी बात अगर ऐसी बात तो पूछ लो फायदा क्या है? पहले दरखास्त लगी हुई है। अगर एप्लीकेशन लगी है कि जब तक ये अभी फाइनल नहीं करेंगे कोई नंबरदार नहीं। अगर सुन को तहसील से नाम आया, तहसीलदार ने दिया, आप लोग जा सकते हो ना, 20-20 रुपए का खर्चा है, नहीं तो मैं करूँगा। तो ये सब लोग तहसीलदार के पास जा सकते हैं ना, कोई डर की बात तो नहीं है ना। हमें कोई एतराज नहीं है इब्रार से नंबरदार साहब क्यों बने, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन नाम का हमको पता करना है, ये रातों रात ये गेम क्यों होती है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांव के किसी आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी से कुछ लेना है। मुझे सिर्फ ये है कि रातों रात नाम क्यों आता है। हमें नंबरदार वही रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साथ नंबरदार नहीं चाहिए। एक रेजोल्यूशन लिखो हमें ये चाहिए कि नाम क्यों आया रातों रात। सरपंच को दे दो, सरपंच जाने उसका काम जाने। नहीं तो हमारी सरपंच की अगर आप लोग चल सकते हो, डीसी साहब के पास चलना है, डीसी साहब के साथ वहाँ चलना है, तो हम चलेंगे साथ में, चलो किराया मैं दूंगा। अगर इतना में नहीं कर सकते तो सो जाओ भाई, सुनो मेरी बात, अगर नहीं कर सकते तो सो जाओ। सरपंच साहब ने मौके के रेजोल्यूशन लिखो ज़्यादा बेटर। अगर इलेक्शन नहीं हुआ नाम क्यों आया नहीं होगा तो फिर आ जाओगा। ये बात तो सिलेक्टेड यार लोगों ने सिलेक्ट किया इलेक्शन करवाओ मुझे कि अगर मिलिटेंसी हुई है तो मिलिटेंसी का सेक जो है, दर्द जो है वो हर घर में था। रात 4 बजते थे तो क्या बीती थी हम लोगों को सबको पता है, किस तरह जाने तो ये वही कल का वेरिफिकेशन आ जाए, उसमें लिखा जाए कि ये जी किसी मिलिटेंसी में मुलव्वस नहीं था। आज मिलिटेंसी है कहाँ की, ये लफ्ज़ लिखने की जरूरत है। इन चीज़ों से दरकिनारा कर लें, कोई भी जो नंबरदार बनने वाला है वो अपने आप को तैयार कर ले कि किसी अगर कोई बच्चा हमारा उसको रात को मिलिटेंट उठा के दरिया क्रॉस करके ले गया है तो मिलिटेंट उसका रिश्तेदार नहीं था, वो उसकी मजबूरी थी, उसने अपनी जान बचाई है। खबरदार ऐसी चीज़ किसी पे उठाने की कोशिश करें। मैंने 9 में चेंज देखी है, मैं कहता हूँ मैं मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं कि हिंदुस्तान का मोदी शहरी हूँ, मुझे कोर्ट ने बरी किया, मुझे हिंदुस्तान की अदालतों ने बरी किया। आपकी क्या हिम्मत है ये कहने वाले की, किसी पे ब्लेम लगा ही नहीं सकते, ये गलत बात। हमारे मौजूदा सरपंच काजी साहब, नायब सरपंच साहब, हमारे साबका सरपंच ही, बल्कि मैं अपने सुरनकोट के MLA कहूँगा जनाब अशफाक राना साहब, इमाम साहब, हाजी साहिबान, मौजूद सामीन हज़रात, बड़े दुख की बात है कि आज बहुत दिनों से मैं भी ये सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि गांव को जो है वो एक खिचड़ी बना हुआ है। दुख लगता है कि सब लोग बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये ठोस फैसला क्यों नहीं किसी मुकाम पे कर सकते। सब गांव के लोग खराब नहीं हैं, चंद लोग हैं जिनकी वजह से पूरा गांव जो है वो सफर हो रहा है। आज कितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कम से कम 500 रुपये के हिसाब से दिहाड़ी लगाओ, कितने लोगों का, कितना गांव का नुकसान हो चुका है। कितनी बार यहाँ आए हैं आप, क्यों नहीं आप फैसला कर सकते। डेवलपमेंट की बात होती है, मैं पहली बार वल्ला 3 बार सरपंच हमारे गांव के बने, मैं पहली बार पंचायत में आया, यानी कि पंचायत घर में पंचायत बैठी है, पंचायत में पहली बार आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं वहाँ पे, ठोस फैसला नहीं हो सकता है लोगों से। यहाँ करके जाएंगे, बाद में जाके गालियाँ निकालते हैं, तो इसलिए वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझता।
तो मैं सरपंच साहब की भी ये कमजोरी समझता हूँ कि 4 साल में इन्होंने गांव के हर वार्ड से अगर 10-10, 20-20 हज़ार रुपया ये वहाँ से लेस करके इस पंचायत घर में यहाँ बैठने के लिए जगह बनाते, आज हम बाइज्जत तरीके से बैठ सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम जो है कम से कम 200 कुर्सी का इंतजाम होना चाहिए था। हमारा पैसा है, हम यहाँ बैठेंगे, हमारी इज्जत है, तो वो पैसा जो है दाएं बाएं धर्म भरम हो जाता है, उसका दुख लगता है। आज आपके सामने है। रही बात नंबरदार की, हमारे नंबरदार साहब ने बहुत ही अच्छा वक्त निकाला, वो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, कैसा दौर था सबको पता है। अब उनके साथ हमारी लड़ाई नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन था, इस गवर्नमेंट ने सब कुछ चेंज करना था। ये राज एक बची हुई थी पोस्ट, ये भी चेंज कर दी। उसमें गवर्नमेंट ने एक गलत डिसीजन लिया कि एज जो थी वो एक इन्होंने मीडियम एज रखी है। मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई, मैंने उस दिन उनको बोला हम यहाँ क्यों नहीं आए, हमने बोला पहले वहाँ से कंफर्म करते हैं। यहाँ एक शोशा बना हुआ है गांव के अंदर जी, नंबरदार बनता है, जब भी कोई इलेक्शन आता है उसमें ये जो है क्वालिफिकेशन जाहिर कर देते हैं। ये हमारे अशफाक साहब यहाँ मौजूद हैं। पॉलिटिशियन में, सियासत में कोई एजुकेशन का रोल नहीं है, ये सुन लेना आज सभी लोग। कभी भी सरपंच बनता है जी वो MA होना चाहिए, वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ये कोई है नहीं, ये कुछ नहीं है। अब हमने अब नंबरदार साहब तहसीलदार साहब से मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि हमें हदायत है डी साहब की कि कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। तो क्यों यहाँ 12वीं और 13वीं का ये शोशा बनाया हुआ था गाँव में, सब लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है चंद लोगों को, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नंबरदार साहब के साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं है, वो हमारे नंबरदार पहले भी थे, आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वहाँ नौजवान आदमी को चुना जाए, तो इसमें उनको भी नाराज नहीं होना चाहिए, बाकी लोगों को भी नाराज नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का फैसला हमको मानना चाहिए। वो मैं बात कर रहा था कि तहसीलदार साहब से मैंने बात की कि ये जो आपने एक यंग एज रखी है 25 से 40 के बीच में, ये एक यंग ब्लड है, या तो इस एज का किसी को मार के आएगा आपके पास या खुद मार खा के आएगा, क्योंकि ये एज एक जो होती है वो एक यंग ब्लड होता है इसमें। उन्होंने कहा कि आप किसी शरीफ आदमी को बना दो, क्योंकि शरीफ आदमी है लेकिन उनमें भी कुछ कमियाँ होती हैं, तो वो बात हमने दरगुजर की, चलो रहने दो। वो कन्फर्म करने के लिए उस दिन मैं इसलिए गया था कि ये एज और एजुकेशन का जो मसला है ये आपके सामने हमने बता दिया, ये कोई मैटर नहीं है कि कोई BA MA होना चाहिए, ये सियासत में ये कोई रोल नहीं होता है किसी का। वो हमारे यहाँ जो MLA का इलेक्शन लड़ते हैं उनको सब पता है। तो ये आज के बाद प्लीज़ ये कुछ न्यूज़ें होती हैं फेक, उनको मत जो है वो अपलोड किया करो। तो ये आप जो करता है उसकी भी बेइज्जती होती है, पढ़ा लिखा कोई करेगा तो उसकी बहुत इंसल्ट है। तो रही बात, आप जो हमारे 6 मेंबर थे उन्होंने कुछ किसी के हक में विड्रा किया है, जैसे हमारे अशफाक साहब का सरपंच होनहार आदमी है यहाँ के, वो समझते हैं ये बात। लेकिन मैंने उनसे ये बात कही थी कि बार बार पूरे गांव को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 कैंडिडेट हैं, गांव के कुछ मौजूद आदमी हैं, उनको बुलाओ, 6 को बुलाओ। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी के हक में, विड्रा कर जाएंगे, नहीं बनेंगे 6 के 6, बनेगा तो एक ही बनेगा। क्यों पूरे गाँव की जो है गरीब लोगों की जहरी आप तबाह करवाते हो बार बार। आज देखो फिर वो गाँव पार्टीशन में आ गया है। यहाँ अगर कम्युनिटी की बात करोगे आप देख सकते हो खून यहाँ है, खून नहीं है। ये बात कम्युनिटी की है या नहीं हमारे गांव में? ये बात खत्म होनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट करनी है भाई, ये मत देखो कौम के ऊपर मत किसी को रहनुमा बनाओ। रहनुमा उसको चुनो जो आपकी डेवलपमेंट कर सकता है। आज के बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। आज के बाद कोई भी इलेक्शन होगा, पंचायत का हो या जो भी होगा, MLA का हो, किसी भी मतलब बेस पे इलेक्शन होगा, वो डेवलपमेंट और रोजगार पे इलेक्शन होगा। आज कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता है, वो काम के ऊपर होगा और डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन होगा। तो ये जो नंबरदारी की बात है, आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इतने आदमी यहाँ बैठे हैं, आपकी बहुत बड़ी ताकत है, इसको आप मजाक मत समझें। एक रेजोल्यूशन यहाँ पे लिखी जाएगी और वो रेजोल्यूशन जो तहसीलदार साहब को जो दी जाएगी कि हमने हमारा जो कैंडिडेट है वो हमने ये सिलेक्ट किया है, वो चाहे 1000 किसी लिस्ट में नाम दे दे, वो हमें कोई एतराज़ नहीं। क्योंकि बहुत सारे नंबरदार कैसे बने ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी का बाप नंबरदार था, उन्होंने किसी कंसर्न आदमी से बोला होगा कि ये पीछे हो गया है, ओल्ड एज हो गया, तो इसके आपके बेटे का नाम क्या हो सकता है, इस तरह कोई किया हो, बेटे का नाम लिखा हो तो वो आ गया हो। क्योंकि गाँव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पता ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है अभी, ये बता सकते हैं ना आप सब। इसलिए आप सब गाँव के एक अच्छे, हमारा गाँव अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा गाँव है। तो इसमें कुछ आदमी जो है वो गांव को, आप सब पब्लिक को एक जगह इकट्ठा नहीं देखना चाहते। आप लोग इकट्ठे होंगे तो एक ताकत बनती है, वो ताकत को तोड़ना चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए उन लोगों से आप हर वक्त होशियार रहें।
تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ہمارے جتنے بھی آپ یہ ہمارے اشفاق صاحب بیٹھے ہیں، کیونکہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب کبھی اس کوئی سرپنچ بنتا ہے تو اس وقت آپ لوگ جو ہوتے ہیں یا اس کمیونٹی بیس پہ اس کو بناتے ہیں یا جیسے بھی بناتے ہیں، لیکن پلیز خدا کے لیے گاؤں کا سرپنچ ہو، ایک ممبر ہو، وہ ایک ریسپیکٹڈ آدمی ہوتا ہے. آپ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوگی، باہر جا کے کسی آفس میں جا کے پوچھو اس کی کتنی عزت ہے. پلیز اس کو گالی نہیں دینا چاہیے، برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے ووٹ سے بنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے گاؤں کے کوئی آ کے کسی نے ووٹ دیا ہے. تو لاسٹ میں یہ بات کہوں گا کہ نمبرداری کے اوپر جھگڑا مت کرو. اس وقت گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ ہر گاؤں میں ہر پنچایت میں الگ ڈیلر بنے گا، اس کا چوکیدار بنے گا. وہ 2 پوسٹیں ہیں وہ بھی ہماری ویکنٹ ہیں. پلیز یہ بہت بڑی بےزتی ہے ہمارے گاؤں کی. غلام رسول ڈیلر ہے، وہ سرکاری ڈیلر ہے، جیسا بھی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تناؤ نہیں ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن ہمارے گاؤں کی کوئی بچہ اگر سرپنچ صاحب کے بچے کا وہاں پہ انگوٹھا نہیں لگ رہا ہے تو یہ جائیں گے راشن کے لیے، تو کتنی بڑی بےزتی ہے ہماری وہاں. اس لیے یہ بات جو ہے اس کا بھی حل کرو. اور یہ آج لاسٹ ڈیسیجن کر کے جو آج کے بعد آپ یہاں لوگوں کو بار بار بلانے کی، آپ لوگوں کا جو ہے ٹائم ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا حافظ.